thank you all the esteemed speakers, advisors coming here and giving us your valuable support and your thoughts. Well, thank you, Ekta, for sharing your mission and introducing the entire team and the advisory board. Well, Franklin Roosevelt said, I'm not the smartest and the fellow in the world, but I sure can pick smart colleagues. And this is what exactly Ekta has done, building up the team, gathering all these smart people together, making them with her, taking with them along with her. So she picked up these smart individuals to join hands with her. Now, before I begin, I would like to just share the schedule of the entire day's program, which is already there on the screen, for, I believe. We will be beginning with the first event, that's the first discussion, which is going to be inspiring to a greener environment. After that, it would be Women and Democracy, which would be from 11:15 a.m. to 12:15 p.m. Then we would continue with We and Water, which would be taken by the Wiki. That will be at 12:30 p.m. to 1:30 p.m. We have an oath-taking session. Then we would be continuing further, that is post-lunch, that is Emerging Trends in Art, which would begin at 3:15 to 4:15 p.m. Sustainable architecture would be that the panelists would be there online from 4:30 to 5:30 p.m. Holistic Health, 5:45 to 6:40 p.m. And yes, we end the session with a vote of thanks to each and every one. Well, we, Team Parijay Genus, is honored and blessed to have the passionate people, all of us who are associated with us. With this note, I declare the opening of this event, Ek Nai Azadi. The first section of the discussion will be on, like I already mentioned, inspiring to a greener environment. Our panelist who would be joining us on the session is going to be Dr. Rajnikant. Ma'am, can we have the slide? Pavani, give me a moment. Let me start the slides. Okay, sure. Thank you. Well, just to brief you a little bit about Dr. Rajnikant. Dr. Rajnikant is a graduate in agriculture with master's and PhD in soil and agriculture chemistry, botany from Banaras Hindu University. He has played a vital role for protection and promotion of traditional handicrafts and handloom products. Due to his initiative, Varanasi region and Uttarakhand, they have granted the GI tag to him. He's a Padam Shri awardee 2019 for social service and awarded National Intellectual Property Award 2017 and Samay Udayami Award 2012 as the Best Social Entrepreneur Lokmat Samman 2018, and many more. So let's give applause and welcome Dr. Rajnikant. Our next panelist is Swami Sahajanand. Swami Sahajanand is a founder of Mission Green Foundation, and he aims to empower today's generation to plant more and more trees. Mission Green Project is an advocate for the indispensable role of Mother Nature and environment. He aims at sensitizing the common man about the current scenario of the environment across the globe and suggesting intervention options for a turnaround to the degrading environment. Public awareness, use of fabric bags in place of polythene carry bags towards Polythene Mukt Bharat are his major area of target. We welcome you, Swami Sahajanand. Our third panelist is retired Colonel Suresh Patil. Retired Colonel Suresh Patil is the founder president of Green Thumb Environment Protection Group for eco-restoration activities. He initiated Justice for Jawans for the welfare of war widows, ex-servicemen and their wards. Another initiative by him is the Chhatrapati Shivaji Muslim Brigade for National Integration Program, a campaign called Manav Jodo Abhiyan. In the last 3 decades, he has successfully planted 1 million trees with the help of volunteers. He conducts environment awareness programs in schools and colleges. He has been felicitated at various forums, including Dubai International Award. A heartiest welcome to you, Colonel Suresh Patil.
And our moderator along with me would be Dr. Jaypal. Just got an introduction with him. So the format of the program would be where each speaker, that is the panelist, would be getting a time that is there to share their views on this particular topic, that is the inspiring. So we begin. I invite I'm sorry, there's a little technical thing. Just give me a moment. Excellent. We have Dr. Suresh, we have Suresh Ji here. Sejanand sir is also here. Dr. Rajnikant is also. So yes, Dr. Rajnikant, Sejanand Ji and Suresh Patil. Can we begin, sir? जी. Great. तो सर आई वुड कॉल अपॉन डॉक्टर रजनीकांत, जो आप अपने व्यूज हैं आप शेयर कीजिएगा, आप अपने जो अनुभव है उन्हें शेयर कीजिएगा, सो दैट हम सब उससे प्रेरणा भी ले पड़े। एंड हम कुछ यस लाइक अभी कपिला जी ने भी कहा, एज वेल एज विवेक जी ने भी कहा, कि हम जो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करें इनको हम एक एक्शन प्लान में लाएं, सो दैट इट बिकम्स वर्थवाइल। Over to you, Dr. Rajnikant. Okay. Thank you very much to the organizer, स्वामी सहजानंद जी, माननीय मेजर साहब, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए वो सैकड़ों लोग जो आज की तारीख में इस लोक कल्याणकारी कार्य के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को जो लगभग 32 वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आभारी हैं आयोजकों के कि उन्होंने एक नई आजादी के लिए हमें भी इस अभियान में शामिल किया। हम इस पूरी प्रक्रिया को आज से 2500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं। उस कालखंड में जब भारत को सोने की चिड़िया कहते रहे और आचार्य चाणक्य, जो चाणक्य पुत्र, जिन्होंने इस देश के अंदर आने वाले आक्रांताओं को उस समय से ही पराजित करने का काम शुरू किया था, वो चाहे अलेक्जेंडर हो, जिसको अलेक्जेंद्र कहा गया, ऐसे लोगों को भी उन्होंने वनवासी, आदिवासी, जनजाति लोगों को एकत्र करके, जो पर्यावरण के प्रेमी थे, जो यज्ञ में अपनी आहुतियां देते थे, ऐसे लोगों को शामिल किया और परास्त करने का काम किया इस भारत की पवित्र भूमि से, जहां कहा गया कि अतिथि देवो भव, और दूसरी तरफ कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। और उसी कालखंड में वैदिक विचारों से प्रेरित, वैदिक विचारों से उत्प्रोत होकर के सनातन संस्कृति के लोगों ने उस समय भी वृक्षों की पूजा का अलग अलग तरीकों से संकल्प लिया था। वैदिक काल से ही जब हम कहते हैं कि वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, नदी की पूजा, पर्वत की पूजा, ये सारी वो सनातन संस्कृतियां हैं जहां वृक्ष को भी भगवान के स्वरूप में रखा गया है। और उसका सारे लोग साइंटिफिक कारण जान रहे हैं, सारे विद्वान लोग हैं कि वृक्ष को क्यों श्रेणी में रखा गया है।
जो देने वाला है, इस सृष्टि को देने वाला है, वह चाहे ऑक्सीजन के रूप में दे रहा हो, चाहे छाया के रूप में दे रहा हो, चाहे फूल पत्ती के रूप में दे रहा हो, या फल के रूप में दे रहा हो, ये तो हमारी अपनी परंपरा रही है। और वो परंपरा ऋषियों की, मुनियों की, ये सनातन परंपरा है। और ये वो परंपरा है, जब संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें वनस्पति की आराधना का पूरा श्लोक है वैदिक ऋचाओं के अंदर। इसका मतलब है, हम जब शांति पाठ करते हैं तो शांति पाठ में भी वनस्पति की उपासना की बात है, वनस्पति शांति की बात करते हैं। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ देने वाला है वो उसी ईश्वर के रूप में है, और वृक्ष हमारे लिए ईश्वर के रूप में है। अब सनातन काल से ही आप एकदम छोटे से ग्रीन ग्रास की बात कर लीजिए, हम दूब घास की बात कर रहे हैं, दूर्वा का इस्तेमाल, दूर्वा का प्रयोग, दूब घास का इस्तेमाल अभी 10 दिन का गणेश उत्सव पर बीता है। हमारे किसी भी सनातन धर्म के पूजा पाठ से लेकर सारे कृत्यों में बिना दूब घास के शुरुआत नहीं हो सकती है। गणपति को अर्पित करते हैं। अब आप देखिए कितना महत्व है कि दूब घास से शुरू किया, जिसको कहा गया तृण है। और जब तृण का उल्लेख आता है तो हम फिर जाते हैं रामायण कालखंड में। रामायण कालखंड में तृण का देखिए कितना बड़ा महत्व है कि अशोक वाटिका के अंदर जब रावण मां सीता के पास पहुंचता है तो उन्होंने स्पर्श करने का प्रयास दूर से ही करता है। उन्होंने क्या कहा? एक तृण को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि हे तृण, हमारी रक्षा करना, हमारे पवित्रता की रक्षा करना। ये स्वावलंबन है, ये आत्मविश्वास है उस पृथ्वी के, उस ग्रीन उत्पाद के प्रति, उस तृण के प्रति, उस दूर्वा के प्रति। वो मूल्यवान है। और उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में रक्षा करना। दूसरी तरफ एक शब्द क्या कहा जाता है? डूबते को तिनके का सहारा। वो तिनका क्या है? उस पृथ्वी की एक घास है। तो बड़ी, अब सोचिए कि वहां से शुरुआत हो रही है। ये जब हम ग्रीन अर्थ की बात करते हैं और हम आजादी की बात करते हैं, तो वहां से शुरू हो रहा है कि पृथ्वी के ऊपर में जमा हुआ सबसे छोटा से छोटा ग्रीन उत्पाद भी, जो इस इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विशाल से विशाल वृक्ष को भी वो घास अपनी जड़ों से बांध करके वहां की मिट्टी को सुरक्षित रखती है। जो आपने देखा होगा कि अक्सर बरसात के बाद में बड़े से बड़े विशालकाय पेड़ गिर जाते हैं। हम संयोग से कृषि के विद्यार्थी भी रहे। आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट इन सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, so I am very much familiar with the soil and the role of the grasses to survive, not only for the big tree, the survival for all the agriculture tribe of the product, including the fruit products. If in any field, if there is no grass at all,
the time will come when the heavy rain will come, the whole tree will be fallen down. तो एक छोटे से ये सनातन की व्यवस्था रही है कि छोटे से तृण को भी, छोटे सी दूर्वा को भी हमने अंगीकार किया, और वो महत्वपूर्ण है, वो ईश्वर के रूप में है दूर्वा का अगर हम प्रयोग करते हैं। अब हम उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब अलग अलग देखिए श्रेणियां हैं इस आजादी की, नई आजादी में वृक्ष का जो महत्व, अलग श्रेणियां हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए तो हम तुलसी पे आ गए। इस पृथ्वी पे एकमात्र वनस्पतियों में तुलसी जी वो एकमात्र एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग सारी आयुर्वेद की औषधियों में किया जाता है। हम सिर्फ प्लांट से रिलेटेड बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो विषय वही है, लेकिन वो आजादी से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के सनातन परंपरा के, वसुधैव कुटुंबकम के। क्योंकि अगर वो नहीं है तो इस पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, और वो है तो हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम निश्चिंत हैं। हमको सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। अब तुलसी जी के आप फिर देखिए कि सारे अनुष्ठानों में, सारी औषधियों में, सभी आयुर्वेद में, पूरी पृथ्वी पे अगर किसी चीज का प्रयोग हो रहा है तो तुलसी जी का प्रयोग हो रहा है, और वह भी पूर्ण रूप से इस भारत भूमि से ही जुड़ा हुआ है। हम उससे ऊपर थोड़ा और बढ़ते हैं, अब एक और श्रेणी में आ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे वृक्षों की परंपरा को हमने दूर्वा से शुरू किया था, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। फलदार वृक्षों के प्रयोग होते हैं, उन वृक्षों का भी प्रयोग होता है जो आवासीय वृक्ष होते हैं, जो मकानों को बनाने में काम आते हैं, और ऐसे वट वृक्ष भी हैं जो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पक्षियों को, जीवों को, जंतुओं को शरण देने का काम करते हैं। और पवित्र पीपल के वृक्ष की बात तो कुछ करनी नहीं है, वो सारे लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पे। पवित्र पीपल का वृक्ष जिसको कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो ज्ञान का वृक्ष है जहां बैठ करके बड़े बड़े ऋषियों, मुनिषियों ने, महर्षियों ने अपनी साधना किया, अपना तप किया है। बुद्ध को बोधित्व की प्राप्ति होती है, ये परंपरा है। हम सामान्य मनुष्य से बुद्ध हो जाते हैं, ये वृक्ष की महत्ता हमारे शास्त्रों में है। और जब बुद्ध होते हैं तो आजाद हो जाते हैं। जो बुद्ध हुए तो आजाद हो गए, उसका सिर्फ तात्पर्य ज्ञानी से है, जो मोह से, माया से। अब काशी मम है इसलिए काशी का महात्मा अपने आप में स्वामी जी से लेकर के सारे लोगों से वाकिफ है। वट सावित्री की पूजा काशी में, वट के एक ऐसे वृक्ष है यहाँ पे जो लगभग 100 वर्ष से जमीन पे लेटे हुए हैं, 100 वर्ष से जमीन पर लेटे हुए हैं मीर घाट पे। और वहां पे वट सावित्री की पूजा के दिन हजारों हजार की संख्या में लोग जा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं लेटे हुए। या साखू के वृक्ष को कहा गया
जो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है, गोरखपुर, गोरक्षनाथ की वो पीठ जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं। साखू का वृक्ष के लिए कहा गया 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर 100 साल सड़ा। 300 वर्ष की आयु उस वृक्ष की सामान्य रूप से कही गई। ये बड़ी विविधता है। हम अपने जीवन के प्रारंभ से और अंत तक, अब काशी है तो महाश्मशान भी है, मणिकर्णिका भी है, तो आखिरी समय में भी उसी लकड़ी की आवश्यकता। वह ग्रीन से थोड़ा सा ड्राई हुआ, लेकिन काशी के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे हरी लकड़ियों का भी प्रयोग महाश्मशान में होता है, और लोगों को जान के आश्चर्य होता है कि यहाँ हरी लकड़ियां भी धू धू करके जल जाती है महाश्मशान में। और ये कोई नई बात नहीं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जंगलों की आग को देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, टीवी के माध्यम से तमाम खड़े खड़े जंगल जल जाते हैं। ये अग्नि के साथ में वृक्ष का जो समावेश है वो आपस में मिला हुआ है, क्योंकि वृक्ष के अंदर में अग्नि है, हर वृक्ष के अंदर में अग्नि है। हम साइंटिफिक रूप से भी कह रहे हैं वो अग्नि किस रूप में है कि जब अग्नि का संपर्क होता है तो उस अग्नि के साथ मिलकर के प्रज्वलित हो जाती है। वो ग्रीन जरूर दिख रहा है, हरा जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, जल का भी तत्व है, वायु का भी तत्व है, लेकिन अग्नि का भी तत्व है। अगर अग्नि का तत्व नहीं होता तो पाषाण के रूप में होता, और उसके ऊपर में लंबे समय तक आग का प्रयोग नहीं हो पाता, आग अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। ये पूरी प्रक्रिया उस आजादी से जुड़ी हुई है जो मनुष्य के जीवन काल में उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक समाहित है। ये आजादी उससे जुड़ी हुई है जो मनुष्य को उसके व्यक्तित्व की पहचान उन वृक्षों के माध्यम से कराती है। अगर नहीं होता तो अमेरिका जैसा संपन्न राष्ट्र नीम, हल्दी, तुलसी, अदरक, इसको क्यों पेटेंट करने के लिए प्रयास करता? आप महसूस करें इस चीज को। ये बड़ा ही सार्थक और प्रासंगिक है कि हम लोग ऐसी चीजों को जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फिर महत्व मालूम होता है कि नीम का कितना बड़ा महत्व है प्राचीन काल से लेकर अभी तक। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल को जोड़ दिया, जिसमें वृक्षों का बहुत बड़ा स्थान, ग्रीन का बहुत बड़ा स्थान पूरी दुनिया के अंदर में एक बार फिर से हो गया। और हमें लगता है कि भारत की ये आजादी इस फोरम के माध्यम से एक नई आजादी, ग्रीन के माध्यम से नई आजादी, ये एक नई क्रांति के रूप में आगे आ रही है, और जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, इस फोरम का योगदान होगा, जो विद्वान मनीषी जुड़े हुए उनका योगदान होगा। और हमें लग रहा है कि राष्ट्र फिर से अपने गौरव को प्राप्त करेगा, फिर से ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू। Thank you, Dr. Saab. Thank you so much for this, you're sharing your views.
Dr. Jaipal, I would request you to please invite the other panelists on stage. आज सबसे पहले तो परिचय में हमारे जो स्पीकर्स हैं इनके विषय में यदि बोलना चाहूंगा तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। स्वामी जी हो गए, हमारे कर्नल साहब हो गए और अभी हमारे डॉक्टर रजनीकांत जी थे। आज रजनीकांत जी ने हमारे को वैदिक काल से लेके बौद्धिक काल में पहुंचाया और बौद्धिक काल से लेके आधुनिक काल में पहुंचाया, और इस सब का हम श्रेय देंगे एकता मैडम को, जो कि परिचय के माध्यम से एक नई आजादी को उस एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि इतने विद्वान व्यक्तियों को इकट्ठा किया। ये अपने आप में एक नई आजादी का एक बीज आपने पौध आरोपण किया है कि जो आने वाले वक्त में एक इस समाज को एक नई आजादी देगा। तो मेरा तो आज हम इतने उत्साहित हैं कि बोल नहीं सकते कि आज एकता मैडम ने हमारे इस प्लेटफॉर्म को बनाया कि सर ने तुलसी से लेके पीपल तक और पीपल से लेके हमारे इस नई आजादी को आदमियों के साथ, मानवता के साथ जोड़कर एक बड़ा अच्छा काम किया है। जी धन्यवाद। I call upon अभी हम अगले जो हमारे स्वामी जी हैं आपको आमंत्रित करते हैं, आप प्लीज आइए और शब्द बोलिए। जी ओम नमः शिवाय। सभी सम्मान के योग्य डॉक्टर रजतकांत जी। स्वामी जी थोड़ा सा माफी चाहती हूँ बोलने के लिए सर, थोड़ा समय का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि और सबको भी हमने शेयर करना है। ठीक है स्वामी सर। जी हमारा नया सेशन है और सेशन स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग यदि गड़बड़ाता ही चला जाएगा, इसलिए जो मैडम ने कहा वो बिल्कुल ठीक। स्वामी जी 10 मिनट्स एंड फिर हम लोग 10 मिनट्स हैं वो डिस्कशन के लिए रखें। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद और स्वागत। बगैर पुनर्जन्म के शुभ कर्मों की वजह से मनुष्य पर्यावरण से नहीं जुड़ सकता। इस बात को आप सभी लोग समझ लें कि कोई ना कोई पुण्य उदय होता है तो मनुष्य के अंदर ये विचार आता है कि मेरे अलावा भी और मेरे बाद भी जो संसार है मैं उसकी कैसे रक्षा सुरक्षा कर सकूं। हमने जब मिशन ग्रीन फाउंडेशन बनाया तो हमने एक स्लोगन दिया, मेरी शान मेरा थैला, क्यों करें हम राष्ट्र मेला। और मैंने भारत के प्रधानमंत्री को 4 साल पहले लिखा कि आप लाल किले की प्राचीर से उद्घोष करें कि सभी लोग अपने साथ कपड़े का थैला लेकर चले। आज से 28-30 साल पहले सभी के माता पिता, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची सभी घर से जब भी सामान लेने जाते थे तो कपड़े का थैला लेकर जाते थे। परंतु आज का जो युवा वर्ग है वो संकोच करता है, पढ़ा लिखा वर्ग शर्म महसूस करता है। हमने 82,000 लड़के लड़कियों को जोड़ा कि तुम फटी हुई जीन्स को जब फैशन बना सकते हो तो तुम कपड़े के थैले को भी फैशन बना सकते हो। रही बात पेड़ की, पेड़ कहे मानव से तू ख्याल कर ले, सच्चा साथी ही तेरा संभाल कर ले। इस पृथ्वी पे अगर कोई साथी हमारा सच्चा है तो वो है वृक्ष। आज वर्तमान परिवेश में जो पर्यावरण की दुर्दशा है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिलती थी तरवर की छाया, अब तो वो युग आया पंछी भी सहमा है, काहे मैं धरती पे आया। आप देख रहे होंगे कि आपको पक्षी नहीं मिलता है। हमने पूरे भारत में 17-18 कंट्री के अंदर एक 5 स्टार रैंकिंग शुरू करी और मैं चाहूंगा आप इसको समझ के, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कहा था हम कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स लेके आए जिसको हम क्रियान्वित कर पाए। तो 5 स्टार रैंकिंग क्या थी? जंगल काट के हमने घर बनाए। जब जंगल काट के हमने घर बनाए तो हमने पक्षियों का स्थान छीन लिया। अब पक्षी कहाँ जाएंगे? तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जिनको हम अनपढ़ कहते थे, तो अपने घर के छत के नीचे दीवारों में एक आला रखते थे कि पक्षी आके उस आले में बैठ जाएगा। परंतु क्लाइमेट चेंज हुआ, हमने वो आले बंद करके बिल्कुल सील्ड कांच की खिड़कियां लगा दी और एसी को हमने अपने घर में शुरू कर दिया।
स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, घरों में, होटलों में। अब पक्षी कहाँ जाएगा? तो पक्षी को तो आप अंदर घुसने नहीं देंगे। तो हमने जो 5 स्टार रैंकिंग शुरू करी, उसके अंदर हमने कहा कि आप अपने घर के अंदर एक पक्षियों के लिए कोई भी घोंसला बनाएं और उसको पानी का स्थान दें। जो भी इसको करेगा उसको 1 स्टार मिलेगा। अब जंगल है नहीं, आपके पास जमीन है नहीं, आपने अपने फार्म हाउस को छोड़कर आप फ्लैट्स के अंदर आ गए, तो कम से कम आप अपने फ्लैट के अंदर 5 गमले तो रख ही सकते हैं सिंबॉलिक रूप से। अगर आप 5 गमले अपने घर में रखते हैं तो आपको 1 स्टार मिलेगा, अर्थात आपको 2 स्टार होंगे। तीसरा, पानी। हम सोचते हैं कि पानी को हम बना लेंगे, पर ऐसा है नहीं। 134 देशों में 2036 की पूरे विश्व में तैयारी चल रही है कि हम जैसे नदी के पानी को हमने बोतल के अंदर बंद कर दिया, अब बोतल से भी निकलकर वो पानी छोटी छोटी गोलियों के रूप में, टैबलेट के रूप में आने वाला है कि आप वो गोली खाएं और अपने शरीर की मात्रा को, पानी की मात्रा को आप कंप्लीट कर लें। वो पानी, आपने सनातन धर्म में एक शब्द जरूर सुना होगा, विष्णु भगवान, नारायण। नारायण शब्द का जो अर्थ है, नार कहते हैं जल को, आयन कहते हैं शयन करने वाले को। तो जल में शयन करे वो नारायण है। तो बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो नारायण का रूप होता है। और हमने उसको भी खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पानी को प्यूरिफाई करने के लिए घर में एक्वागार्ड लगा दिए। जब हम घर में वाटर प्यूरिफायर से 1 लीटर पानी शुद्ध जल लेते हैं तो हम 3 लीटर पानी जया कर देते हैं। अगर मैं अकेले भारत की बात करूं तो भारत में लगभग 92 लाख एक्वागार्ड लगे। पानी प्यूरिफाई करते हैं तो 60 लीटर पानी हम जया करते हैं। तो 92 लाख लीटर, 92 लाख एक्वागार्ड का मतलब हुआ हम 27 करोड़ लीटर पानी डेली वेस्ट करते हैं। तो हमने कहा इस पानी को रीयूज करें और अपने घर में संभव हो तो वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं, तो उसको 3रा स्टार मिलेगा। आप अपने घर के अंदर जो भी माउस है, प्लास्टिक का सामान है, आप अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा आप फेंक देते हैं। हर शहर के बाहर कुतुब मीनार से भी बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं और उनको अलग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने पूरे देश के अंदर ये मुहिम लगाई कि एक एक पहाड़ को ठीक करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली के अंदर जो गाजीपुर का पहाड़ है, 3600 करोड़ रुपया उसका बजट पास हुआ है उस कूड़े को ठीक करने का। तो पूरे भारत में आप देख सकते हैं जो हमारी वजह से कूड़ा फैला, कितने लाखों करोड़ रुपया हम आने वाले वक्त के अंदर इनके ऊपर जया करने वाले हैं। वो पैसा किसका है? वो आपका है, हमारा है। हम उस पैसे से सृजनता कर सकते थे। तो हमने बताया घर से कूड़ा निकल ही नहीं सकता। आप जो सब्जियां फेंक देते हैं पॉलीथीन के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमने इस मुहिम को लगाया कि जो भी गाय को माता कहता है और वो ही प्रसाद चढ़ाने जाता है मंदिर में बूंदी का, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में चला जाता है, गाय मरती है। गाय को पॉलीथीन खिलाने के लिए मंगल ग्रह से या किसी और गैलेक्सी से आदमी नहीं आता है। आप और हम सब ही उस यहाँ के जीव जंतुओं को नष्ट कर रहे हैं। और कारण क्या? सिर्फ एक ही कारण है, अज्ञानता। अगर हम किसी तरह से, क्योंकि भारत जो है बहुत समृद्ध है, बहुत आस्थावान है, बहुत भक्तिमान है, तो ये कैसे संभव है कि भारत के व्यक्तियों से डायरेक्ट किसी जीव की हत्या हो जाए? भगवान शिव ने एक सिंबॉलिक दिया। क्या सिंबॉलिक दिया? भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है वो पार्वती है, जो उनके बड़े पुत्र हैं वो कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं वो गणेश हैं, भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है, कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है, गणेश का जो वाहन है वो चूहा है, और पार्वती का जो वाहन है वो सिंह है। ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? आपने कभी सोचा? जो शिव के गले में सांप है वो चूहे का शत्रु है, मोर चूहे का शत्रु है, सिंह का शत्रु बैल है, या बैल का शत्रु सिंह है। सभी एक दूसरे के वैरी हैं। परंतु अगर वो सभी जीव जगत है तो मानवता है।
ये भगवान शिव का जो शिव परिवार है वो इस बात का प्रतीक है कि जो शिव परिवार है, अगर हम उसको आम भाषा में समझें, मानव को जीने के लिए मानव की आवश्यकता नहीं है, मानव को जीने के लिए सभी जीव जगत की आवश्यकता है। इस साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री से जब 3 दिन पहले हम मिले तो हमने उनको कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वक्त में सिर्फ कार्बन क्रेडिट की वजह से डिस्टर्ब होगी। तो उन्होंने इसी 15 अगस्त को कार्बन क्रेडिट के ऊपर लोगों को बताया कि आने वाले वक्त में इनकी क्या योजनाएं। हमने सब संतों को, भारत में 13 अखाड़े हैं और लगभग 7 से 8 लाख साधु हैं और 2500 महामंडलेश्वर हैं। मैंने भगवान शिव के आशीर्वाद से उन सभी महामंडलेश्वरों को जोड़ा और उनको बताने का प्रयत्न किया, जब भी निराकार भाव में आप सब लोग किसी भी आश्रम में गए हो, किसी भी गुरु परंपरा में रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर 2 चरण पादुका होती है। हम चरणों की पूजा करते हैं, क्या मतलब है इसका? तो मैंने उनको बताया कि एक को कहते हैं वाटर फुटप्रिंट और दूसरे को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कि आप इस पृथ्वी से जब आप जा रहे हो तो वास्तविकता में आप ऋण लेके जा रहे हो या ऋण को मुक्त करके जा रहे हो। अभी रजनीकांत जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि अभी गणेश महोत्सव चल रहा है और हम दुर्वा चढ़ाते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। गणेश जो प्रतीक है, गणेश बुद्धि का प्रतीक है। अब जिसमें बुद्धि होती है तो उसमें अहंकार आ जाता है, तो सुबुद्धि नहीं रह पाती। तो इस बात का प्रतीक है कि हे मनुष्यों, जिसको तुम अपने पैरों से रोंदते हो वो मेरे सर पर है, मस्तक पर विराजमान है। जब तुम बुद्धिमान तब कहलाओगे जब तुम अपने अहंकार को विजय प्राप्त कर लोगे। और ये गणेश महोत्सव इसी बात का प्रतीक रहता है कि कहीं पूरे साल हमने जो कामयाबी हासिल करी, छुपे हुए रूप से हम अहंकारी तो नहीं हो गए। तीसरा जो सबसे कामनी जी मैं बताना चाहता हूं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो जितने भी पॉइंट्स हैं, भारत की अगर आप अर्थव्यवस्था को समझेंगे, छुपे हुए रूप से जितने भी सोर्सेज हैं वो विदेश में हम भेज रहे हैं। हम सभी के सभी, चाहे वो चावल के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, हमने कुछ ऐसी नीतियां बना रखी हैं कि हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे हमें लगता है उतने हम जल्दी स्ट्रोंग होंगे अर्थव्यवस्था में, जबकि ऐसा है नहीं। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष से जब हमारी मुलाकात हुई तो आने वाले 3-4 सालों में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विदेश नीति के अंदर निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो आप सभी के सहयोग से, आप सभी की शुभकामनाओं से मैं हृदय से ये बात चाहता हूं कि हम जब भी घर से निकलें, हम अपना कपड़े का थैला लेकर निकलें। पूरे भारत में कपड़े का थैला हमने बनाया कैसे, वो बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा। क्योंकि कपड़े का थैला मामूली बात है, कोट पैंट के कपड़े का थैला नेचुरली वो 20-30-50 रुपए में तो पड़ेगा। हमने उसकी कॉस्ट कैसे कम की वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जितनी भी भारत में कपड़े की मिलें हैं, उनमें जो वेस्ट कपड़ा था हमने वो 40 रुपए केजी में लिया। अब एक कपड़े के थैले को बनाने के लिए 30 से 35 रुपए की कॉस्ट थी। हमने जितनी भी भारत की जेलें हैं उन जेलों में उन थैलों को तैयार कराया और उसकी हम 0 कॉस्ट ले आए। और पूरे भारत में लगभग अभी तक हम 30 से 35 लाख थैले हमने बांटे। 12 ज्योतिर्लिंगों पे, 4 धामों में हमने ये आह्वान किया। और अभी जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हमने एक स्लोगन दिया था, पर्यावरण युक्त पॉलीथीन मुक्त कुंभ होगा 2021 का। और भगवान शिव के आशीर्वाद से हम उसमें सफल हुए और हमने लगभग 4 थैले उसमें बांटे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको विराम देती हूँ। आपको हृदय से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, स्वामी जी ने धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे समय को भी ध्यान रखा और बहुत कम समय में आपने इतनी बढ़िया बात बताई कि सनातन धर्म को भी बता दिया और आपने जो तंत्र था हमारा उसको भी बताया। और आज जो हमारी जंगलों को मकान खा गए और आदमियों के मॉडर्नाइजेशन को इन लोगों ने खा लिया, पानी ने। आज हम मॉडर्न तो हो गए, साथ के साथ में हमारी जो परंपरागत चीजें थी और जो हमारे पूर्वजों ने दिया था वो सब विलुप्त होते चले गए। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते थे, मातृ पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में होता था कि जो गुरु ने शिक्षा दी उसको बचाना,
और देव ऋण होता था कि जो प्रकृति की चीजें हैं उनको बचा के रखना। मगर आज आधुनिकीकरण ने हमारी इन सारी चीजों को खाया। तो स्वामी जी, हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत भी करते हैं कि आपने हमें दोबारा फिर हमारे रूट, बैक टू रूट, हमारी जड़ों से जुड़वाया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। Now we call upon our next panelist, Colonel Suresh Patil. Colonel Suresh Patil, invite you to be on stage, please. Hello. Hello, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. I just minute. I don't know. Now I can see myself. Yes. Unless one sees oneself, one is not confident to speak up. Well, on the outset, I'd like to congratulate Ekta Madam for having got me on this stream. I'm extremely happy to have heard Swamiji and Dr. Rajnikantji, very, very educative information they have passed on. Now, you see, I as a ex-serviceman, ever since I hung up my uniform, मैं हिंदी में अब अंग्रेजी चल जाए, हम दोनों मिक्स कर बात करने चल जाएगी ठीक ठाक, कोई इशू नहीं ना? Absolutely, sir. Not an issue. You can do a mix of both, sir. हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। मेरे पास मेरे ख्याल से वक्त की पाबंदी है, 10 मिनट है, उसमें मैं जितना हो सके उतना बताना चाहूँ कि हम पूना में, महाराष्ट्र में, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। बाकी हमारे जितने भी महामानव इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, और तो मैं 68 में फौज में ज्वाइन होने के बाद में 71 की जो लड़ाई हुई उसमें मैं यंग ऑफिसर था, और उस पर्टिकुलर जो लड़ाई हुई हमारी रजौरी के पास में, उसमें हमारे 47 मैन एंड 6 ऑफिसर्स डाइड, और उसमें मैं भी बुरी तरह से घायल था। जब मैं हॉस्पिटल में था रजौरी में, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा ये जरूरी है, हम लोगों को बहुत जरूर बैकग्राउंड जानना जरूरी है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ। तो मैं जब हॉस्पिटल में था और व्हेन आई केम बैक इनटू माय सेंसेस, तो उस समय मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरे को मिलने के लिए आए 60-70 किलोमीटर पीछे, वापस मतलब बॉर्डर से पीछे। तो उन्होंने कहा, सुरेश, यू आर वेरी लकी, यू हैव सर्वाइव्ड एंड दिस इज अ बोनस लाइफ, नाउ डू गुड टू द ह्यूमैनिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक विशिष्ट समाज, विशिष्ट जाति के लिए काम करो, नहीं, उन्होंने कहा डू गुड टू द ह्यूमैनिटी, जो हमारे सनातन संस्कृति सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति तो यही है, पूरा साइंटिफिक है, जो हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है, और आगे पता नहीं कब तक चलती रहेगी, जब तक ये अनादिकाल तक चलती रहेगी। तो हम फौजी जो है, आपको ये मैं बताना चाहूँ, हर साल हम 40 से 45 हजार सैनिक निवृत्त होते हैं, एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। 40-45 हजार सैनिक जो है रिटायर हो रहे, उनका इस्तेमाल होना चाहिए राष्ट्र निर्मित के लिए। अभी देखिए, जब मैं 93 में रिटायर होके आया, और वो मेरे को 71 की जो बात मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बताई थी, वो मेरे जहन में थी कि मैंने कहा, सुरेश, रीएम्प्लॉयमेंट तो लेना नहीं है, समाज के प्रति कुछ करना है। और देखिए, जब जिंदगी में कोई धक्का लग जाता है ना, मतलब पैराडाइम शिफ्ट होता है उस समय। जैसे मैं, ये मेरे लिए तो बोनस लाइफ है, तो मैंने सोचा कि यार दूसरा जॉब तो करना नहीं है, समाज के प्रति कुछ करना है। और उस समय मैंने ये पर्यावरण के लिए ग्रीन थंब नामक ये संगठन स्थापन किया, और आज के दिन में हम पानी और वृक्ष के ऊपर काम कर रहे हैं, और एनवायरमेंट अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने, पंडित जी ने भी और स्वामी जी ने भी बताया, और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पर्यावरण में बेसिक है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, 3 R है बेसिकली। जैसे स्वामी जी ने बताया कि वो कपड़े का क्यों थैला की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्लास्टिक को
रिफ्यूज करना है, वो पहाड़ों को कम करने का एक ही तरीका है कि एट सोर्स हमने कुछ करना है। तो एनीवे, तो ये 3 आवर्स लेके हमने काम शुरू किया। और मैं आपसे ये कहना चाहूँ, नॉट टू अंडरमाइन एनीबॉडीज नॉलेज ऑन एनवायरमेंट, बट whichever country will have water, that country will become superpower. I believe there's Damn, some Bharat. technique. जी? Yeah, there's some network challenge हुआ था शायद, we couldn't hear you in between. Where did you lose me? Which portion? Yeah, I mean, your last statement was that whichever country has water will be the most powerful. Okay. Whichever country will have water, that country will become superpower. Absolutely. Yeah, and as on today, we have 60 to 65,000 dams in the world, out of which China has 22,000 dams. तो हम चाइना के स्टडी टूर पे गए थे, तो वहां देखा 3 गॉर्जेस डैम, इतना भव्य दिव्य डैम उन्होंने बना रखा है। उससे पहले आपका आसवान डैम था इजिप्ट का, वो भी हमने पर्सनली जाके देखा था, वो उसका भी अभ्यास दौरा किया था। अच्छा, हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 5,000 डैम है, मतलब भाखरा नानगल से लेके पेरियार तक हमारे पास 5,000 डैम है, और सभी में बुरी तरह से मट्टी भरी हुई है, पूरी बुरी तरह से। अभी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और नजदीक में आ जाता हूँ, पूना के लिए जो डैम पानी देता है पीने के लिए भी, पूना के लिए, और पूना डिस्ट्रिक्ट के खेती के लिए भी जो पानी देता है। नाउ दिस डैम, खड़कवासला डैम, आप गूगल सर्च कर सकते हैं बाद में, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना ये है कि उसको 45 मिनट चाहिए, लेकिन 10 मिनट में मैंने कवर करना है, तो आप उसमें गूगल सर्च भी कर सकते हैं। बट नटशेल में ये मैं बताना चाहूँ, दिस डैम वाज बिल्ट इन 1879 बाय महात्मा ज्योतिबा फुले। दैट टाइम पूना's पॉपुलेशन वाज barely lakh प्लस, और पानी कितना था? ये 22 किलोमीटर के तालाब में 4 टीएमसी पानी था। आज 140 साल के बाद में उसमें 1.5 टीएमसी पानी है, और आबादी हो गई 55 लाख। और गवर्नमेंट वांट्स पूना टू बी स्मार्ट सिटी। कैन यू हियर मी? Yes, sir, you're audible, sir. You're audible. Okay, because I must get a little response, otherwise I find it No, difficult. no, sir, you are audible. Yes. As on today, we have more than 55 lakh population, and government wants Pune to be smart city. So obviously, the forecast is that in another 2 years time it will be 7 million, 70 लाख लोग हो जाएंगे। और पानी कितना है? पानी 1.5 टीएमसी है। मतलब हमें इकोनॉमिक्स में जो सिखाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, अपनी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और सप्लाई भी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अब ये जो 22 किलोमीटर का तालाब है, मतलब 44 किलोमीटर टोटल उसका पेरिफेरी बनती है, उसमें बहुत एनक्रोचमेंट हुआ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू इस देश का है कि जो बढ़ती हुई आबादी, जब हमारे जन्म हुआ था, आई एम 47 बॉर्न, 15 दिन पहले मैं आजादी से पहले जन्मा हूँ, हमारी पॉपुलेशन तो उस समय 25, 26, 27, 28, 30 लाख थी। आज हम लोग जमीन पे कह रहे हैं कि 130 करोड़ है। अरे पर जमीन, क्योंकि हमारा गणित तो हमेशा यही हो जाता है, हमारे यहाँ तो 150 करोड़ से ज्यादा है, उसमें रोहिंग्या भी आए हुए हैं, उसमें बांग्लादेश भी आए हुए हैं। तो कहने का मकसद है हमारी आबादी बढ़ रही है और हर चीज में क्राइसिस हो रहे हैं, इसलिए आप और हम सब मिलके एक एक विषय लेके काम करना चाहिए। तो एनीवे, तो ये विषय इसलिए हम लोग पानी और पर्यावरण का जो हमने काम कर रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज के दिन में हमने पिछले 20 सालों में 25 लाख ट्रकलोड मट्टी वो डैम के अंदर से निकाली। और जो मट्टी है ये काला सोना है। जिस किसान को हम ये मट्टी देते हैं, 28 गांव है उसके साथ में, तो जो 2 बोरी भी नहीं ले रहा था धान, वो आज 10 बोरी ले रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जादुई मट्टी है। और इमेजिन करिएगा, महाराष्ट्र में 400 डैम है और भारतवर्ष में 5,000 डैम है हमारे पास। इमेजिन करिए, अगर 5,000 डैम हम सब लोग मिलके अगर साफ करेंगे अगले 10 सालों में, क्योंकि हमारे पंतप्रधान भी यही कहते कि अरे हम तो खंडप्राय देश है, हमें तो लोगों का सहयोग बहुत चाहिए, क्योंकि हम सरकार तो कुछ करना है वो करते रहेंगे। तो अगर हम जो पूना का जो मॉडल है वो हमने यहाँ के पूरा स्वामी जी ने भी मेंशन किया और डॉक्टर साहब ने, रजनीकांत सर ने भी मेंशन किया कि ये गणपति उत्सव चल रहा है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से।
तो पूना के 250 गणपति मंडल जो है उनको सबको मैंने इन्वॉल्व करके और CSR के जितने भी कंपनीज है उनको मिल के हमने ये पिछले 25 लाख ट्रकलोड मट्टी निकाली। अभी ऑब्वियसली मट्टी निकालने के लिए आपको इंजीनियरिंग इक्विपमेंट चाहिए, JCB चाहिए, डंपर चाहिए, पोकलेन चाहिए, तो निकाल के हमने वो बाहर डलवाया, किसानों को दी, बची हुई मट्टी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और पानी के साथ में ऊपर से दोबारा मट्टी ना आए इसलिए हम लोग कैट कर रहे हैं, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। हालांकि इसके विजुअल्स मैंने दिखाने चाहिए थे, विजुअल्स आने से मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाता और आपको समझ में, सबको समझ में भी आ जाता कि हम लोग क्या करें। बेसिकली हाई फ्लड लेवल के बाहर, उसके साथ साथ हम तालाब के साथ में एम्बैंकमेंट बना के उसके ऊपर की तरफ हम कैट कर रहे हैं। आज हमने 15 लाख पौधे उसमें लगाए हुए हैं। और जब हमारा ऑडिट होता है, जैसे आपके जैसे दोस्त लोग ऑडिट करते हैं साल में, तो वो कहते हैं साहब हम तो देखते हैं कि लोग जो 100 पौधे लगाते हैं और उसका ऑडिट साल के बाद करते तो उसमें 60 पौधे भी नहीं होते। आपके यहाँ 100 पौधे चेक करो तो 120 पौधे होते हैं। तो वो 20 पौधे कौन लगाता है? ये तो पक्षी लगाते हैं। जैसे स्वामी जी ने भी कहा, पक्षियों का भी एक योगदान है। जंगल क्या, जंगल सुरेश पाटिल या स्वामी जी या डॉक्टर साहब ने नहीं लगाए, ये तो पक्षियों ने लगाए हुए हैं ना, जितने भी जंगल है। तो एनीवे, फैक्ट ऑफ द मैटर है, अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है। When you remove 1 truckload of a silt, you are catering for 1 tanker worth of water. आज गुणाकार करिएगा, 25 लाख ट्रकलोड गुणिले 10,000, हालांकि 12,000 का भी टैंकर आता है, तो करिए, इट विल बी मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। और साइंटिफिक टर्म में, इरिगेशन लैंग्वेज में वो हो जाएगा 0.20 TMC। और 0.20 TMC का मकसद उस कैपेसिटी का, if you had to build a dam of that capacity, you would have needed minimum 3,000 to 4,000 crores and I don't know how many years. But we have just done it with people's participation. We have spent only 10 crores and we have done a job worth almost 5,000 crores. So fact of the matter is, उसका सिर्फ मट्टी निकालना ही एक उद्देश्य नहीं, पानी तो बचाना ही है। बिकॉज 80-85% पानी हमारा समुद्र में चला जाता है। हमारे यहाँ जलगांव करके जगह है, तो वहां के किसान मेरे पास हमेशा आते हैं, बोलते सर हमारे यहाँ जो हथनूर डैम है, आप यू कैन राइट इट डाउन, हथनूर करके तापी रिवर के ऊपर डैम है, आप चेक करिएगा। तो वहां के किसान कहते हैं सर आप तो पूना में कर रहे हो, हमारे यहाँ भी कुछ कराइएगा। मैंने कहा भैया हम तो जितना फौजी लोग हम इकट्ठा होकर कोशिश कर रहे हैं। तो बोले सर वहां तो वो 60 से 70% वो मट्टी भरी हुई है। और ये मीडिया वाले क्या करते हैं, पहली बारिश होते ही डैम भर जाता है, दूसरे बारिश शुरू होते ही कह देते कि विजुअल्स दिखाते 28 दरवाजे खोल दिए, सब कंट्रोल डोर्स खोल दिए, पानी 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 पानी। अरे लेकिन वहां 1 महीने के बाद में पीने के लिए पानी नहीं है। किसान चाचा आत्महत्या कर रहे हैं, अब उनकी लड़कियां आत्महत्या कर रही है बिकॉज दे डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। तो पानी और जब मट्टी जो है, तो हमें ये देखना है कि जो पूरा पानी जो जिससे बाढ़ क्यों आ रही है, क्योंकि पानी रुकने के लिए जगह ही नहीं है। देयर इज नो मैनेजमेंट टू होल्ड ऑन टू द वाटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर है पूना में, टू cater to augment the water holding capacity of the dam. अगर हम 5,000 डैम अगर अगले 10 सालों में हम सब मिलके अगर करें तो 2,500 नए डैम बनवाने का बेनिफिट मिलेगा और ये बाढ़ कहाँ भी नहीं आएगा। आप मतलब होल कंट्री कैन गो इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी एक बात मैं आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल हम 45 से 50,000 करोड़ यूरिया की सब्सिडी किसानों को देते हैं। अगर आप इमेजिन करिए अगले 5 सालों में अगर ये हम डैम साफ करें लोकसभा से, जैसे पंतप्रधान चाहते हैं वैसे, तो यू विल सेव ऑलमोस्ट 50 to 60,000 करोड़ ऑफ यूरिया सब्सिडी। फिर वो दीजिएगा ना आप एजुकेशन के लिए। हम पूना को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। आई विल शो यू, देयर आर स्कूल्स, देयर आर नो चॉक्स देयर, द टीचर्स पेमेंट्स हैव बीन नॉट मेड। पैसे ही नहीं है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी आबादी हो रखी है। तो ये अगर हो जाए तो 1 पॉइंट एजेंडा इस देश में लिया जाए तो ये देश इतना उत्पन्न पैदा करेगा कि चंद्रमा से आगे कोई ग्रह तारा होगा वहां भी हम लोग ये भेज सकते हैं। और ये तो 2 मैंने बता दिया उसके बेनिफिट। उसके अलावा वहां अभी बर्ड लाइफ हैज इंक्रीज्ड एंड दिस डैम हैज बिकम अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज इट इज। पूना शहर में गार्डन्स अब कम होते जा रहे हैं, एनक्रोचमेंट होते जा रहा है। ये दिस हैज बिकम अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
एंड इट हैज बिकम ब्यूटीफुल। अभी तो नाना पाटेकर ने भी वहां अभी शूटिंग करना शुरू कर दिया, इतना सुंदर हो गया। वी हैव क्रिएटेड अ वाटर फ्रंट ऑलमोस्ट ऑफ 20 किलोमीटर, हमको 44 किलोमीटर टोटल करना है, उसमें 20 किलोमीटर हमने किया हुआ है। और हमें फौज में जैसे सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हम अपने लिए बहुत बड़ा स्टिफ टारगेट रखते हैं। तो हमने टारगेट क्या रखा था, मेरे यहाँ के मेरे और भी साथी फौजी कर्नल जो भी है, कर्नल साठे, कर्नल देशपांडे, हमने ये कहा कि भाई वी शुड set a very stiff target for ourselves. And what is that? You all must know. That is, our objective should be visible from the moon. Now there are only two man-made objects which are visible. One is the Great Wall of China और दूसरा अल मक्तूम राजा ने दुबई में पाम आइलैंड किया हुआ है। आप ये भी गूगल पे देख सकते हो। तो आज के दिन में गलती से हाथ लग गया, सॉरी। हाँ, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? Yes, sir. We can. हाँ, तो कहने का मकसद है कि we had set ourselves a stiff target and we are inching towards it। और ये पूरा लोगों के सवा से हो रहा है, 250 गणपति मंडल, फिर कॉलेज के विद्यार्थी, फिर सिम्बोसिस के विद्यार्थी। अभी इस समय हमारे यहाँ 50 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हर एक को एक एक पौधा लगाने के लिए हमने टास्क दिया हुआ है। और ये इट्स सो ब्यूटीफुल, दैट एरिया इज बिकम सो ब्यूटीफुल, यू हैव टू सी टू बिलीव इट। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर ट्राइंग टू स्केल इट अप टू नेशनल लेवल। हमारी तो इच्छा ये है, हम पंतप्रधान को बड़े बड़े लिख के थक गए, पता नहीं उनसे जवाब नहीं आता। अगर ये नेशनल लेवल पे स्केल अप किया जाए लोगों का सहयोग से, तो ये देश सुपर पावर बन सकता है। एक जमाने में हमारा जीडीपी 45 था, 50 था, छत्रपति शिवाजी महाराज 400 साल पहले अगर आप देखेंगे तो अपना देश का जीडीपी 40 से आगे था, आज 5-7 के ऊपर भी नहीं जा रहा। और 47 में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा $1 इतना था, आज डॉलर वहीं के वहीं है, हम लोग 90 के ऊपर पहुंच गए। तो इसका कारण ये है कि हमको कुछ करना है इस देश के प्रति। जैसे मैंने कहा, ये राष्ट्र का जो संपत्ति है उसको बचाना चाहिए। मैं अफगानिस्तान गया था पिछले 2 साल पहले, तो वहाँ के लोग तो कहते हैं कि भाई अगर दुनिया में एक ही जगह जहाँ से खुशबू आ रही है वो हिंदुस्तान, दुनिया का आत्मा हिंदुस्तान है। और वहां तो हमने उनका डैम बना के दिया है, उनका पार्लियामेंट बना हुआ है, उनका यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है। उनके लोग वहां से यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, IMA, OTA, NDA में उनके बच्चे, उनके लड़कियां आती रहती है। और हम कितने थे, हम लोग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये देश था, आज 30 लाख भी नहीं बचा हुआ। तो इसलिए हमको राष्ट्र की निर्मित करनी है। और आप और जो एकता मैडम ने, मेरे गलती से उनसे मैं कहूंगा कि मुलाकात हुई दिल्ली में, हमारा आजाद भारत रेल यात्रा करके हर साल वो 500 स्टूडेंट्स लेके 15 दिन स्टूडेंट्स को इस देश के बड़े बड़े जगह पे ले जाते हैं और उनको रोल मॉडल्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्मित का काम है, जिसमें हमारे शशांक त्रिपाठी और उनकी जो टीम है, जिसमें एकता मैडम भी उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। तो हम लोग राष्ट्र निर्मित के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। देखो, जज मैं 93 में रिटायर हुआ, मेरे को 2000 पेंशन मिलती थी। आज ये मोदी सरकार ने 1 लाख रुपए पेंशन मेरे को आती है। तो मैं समझता हूँ इसका करना क्या, जब जरूरी थे पैसे उस समय तो थे नहीं। और आज दोनों मियाँ बीवी, हमारा 10,000 में काम होता है, बाकी करो, पैसे को क्या करोगे। तो हम लोग, मैंने खुद के पैसे से 4 बच्चों को पूरा स्पॉन्सरशिप दे के उनको एजुकेशन दे रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी तो खैर पर्यावरण के लिए फुल समय तो पूरा है ही है। माय वाइफ एंड आई वी आर वर्किंग ऑन इट 24/7। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज समय मैंने अब ज्यादा लिया। और एकता मैडम, और मैडम आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी। I'm Kamini. हाँ, सॉरी कामिनी जी, बहुत 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 धन्यवाद आपके, आपने मेरे संधि दी और बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज है ना, हमारे जो भी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने लिखना चाहिए, क्योंकि हम 20-25 लोग ही देख रहे हैं। ये विचार 100 करोड़ लोगों के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश को तोड़ ही रही है। अरे हमको ये देश को बचाना है। जो हर जगह पे इट इज लाइक अ सुनामी हैज हिट एंड गॉन, जिधर जाओ उधर कचरा कचरा, बदबू। अरे मेरे को समझ में नहीं आता, हम क्यों नहीं साफ कर सकते इस देश को। मेरे घर से जीरो कचरा निकलता है और मैं कभी भी पेपर नैपकिन, पेपर प्लेट या बिस्लेरी पानी नहीं पीता हूँ। मैं हमेशा
ये मेरा रुमाल मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कि 365 दिन धो के साफ करके पानी पीता हूँ। मैं जो भी होटल में जाता हूँ, वो होटल वाले कहते हैं कि सर बिस्लेरी का पानी लियोगे, जोर से पूछता है आपको टाई वाला बंदा, और वो देखता है बाएं तरफ और बोलता है हमसे। तो वो चाहता है कि भाई ये नॉर्मल पानी मांग रहा है, बिस्लेरी मांगता है। जब मैं कहता हूँ मेरे को बिस्लेरी नहीं चाहिए, तो एकदम हो जाते हैं यार, ऐसे ही कोई फालतू कस्टमर दिखता है, ये तो पानी नॉर्मल वाला मांगता है। मैंने कहा तुम्हारे पास आरओ है तो आरओ की बोतल दे मेरे को, आरओ का पानी साफ होता है ना, वो दे दे। और फिर वो जब पानी लाने जाता है तो बाकी साथ वाले जो बैठे हुए होते हैं कस्टमर, उनको मैं बताता हूँ, भाई साहब इनका टारगेट है दिन में 10,000 बोतलें खत्म करनी है इस होटल में, और शाम को इतना बड़ा कचरा हो जाएगा। अभी मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, तो शाम को ये कचरा, मतलब ये बोतलें इकट्ठे हो जाएंगी, ये प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठे हो जाएगी, उसको ले जाके जहाँ डालना है वहां के किसान पत्थरों से मार रहे। तो एट सोर्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि कोई पीएचडी करके कोई रॉकेट साइंस वाली बात करनी है। हम ये 3 आर हमने लेने चाहिए। और आज से मैं कहता हूं, मैं एकता मैडम को भी विनंती करता हूं, हम बैन प्लास्टिक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बैन बिस्लेरी। सर आपका Sir. म्यूट हो गया है। Sir, you're on mute, sir. हाँ, तो जब ये बॉटल, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, तो जब ये बॉटल हम लोग रखते हैं तो वो 2 महीने 3 महीने पहले बॉटलिंग किया होता है, वो कैंसरस है, लोगों को समझाना चाहिए। तो इसलिए हमने ये एक प्रण लेना चाहिए कि बैन बिस्लेरी बॉटल वाटर। थर्मस जो होता है 20 रुपए का मिलता है, 25 रुपए का मिलता है, ये खरीद लो, परमानेंट उसमें से पानी पीते रहते हैं, जब भी चाहिए कार में रखो, कहीं रखो, स्कूल में ले जाओ, स्कूल के बच्चे तो ले ही जाते हैं। तो ये बात है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for that. जयपाल सर, आप हैं सर? जी जी जी। जी सर। कर्नल साहब, आपने जो जो बताया और डैम का आपने जो बताया था, वाकई में आपने जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ भी है। और साथ के साथ हमारा आपने जो सजेशन किया कि जो मिट्टी है डैम की, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें सारे में कार्बन भी है, और जो आसपास के किसान और जो मिट्टी को उसको यूज करें, जो सोयल की यानी जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, और बहुत ज्यादा कार्बन भी होता है, और बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। तो सर इसमें कोई दो राय नहीं कि डैम की भी सफाई हो रही है, साथ के साथ में जो किसानों की सोयल की हेल्थ की बात करें तो वो भी एक रामबाण का काम कर रहे हैं। तो सर हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर हम यही चाहते हैं कि जब सेना आएगी तभी तो कुछ देश में रिवोल्यूशन लाएगा। अब एकता मैडम को, कामनी मैडम को भी हम कहेंगे कि अब हम अकेले नहीं है, हमारे यहाँ पर सनातन धर्मी भी हैं, थल सेना से सेना भी शक्ति आ गई हमारे साथ, साथ में हमारे जो विद्वान व्यक्ति हैं वो भी आए। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म परिजय का हो नहीं सकता। और आप परिजय का और साथ में जितने हमारे स्पीकर्स आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे इतने विद्वान व्यक्तियों का ऑर्गेनाइज किया कामनी मैडम, और परिजय की एकता मैडम जो फाउंडर हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके अलावा सर आई वुड जस्ट से हम सब जो है, जो मुझे जो आई मीन आप सबको सुनने के बाद इतना सारा मतलब इंफॉर्मेशन तो छोड़िए, इट इज एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्सपीरियंस जो आप सब कर रहे हैं। सो आई बिलीव एंड आई स्टिल बिलीव, मैं खुद भी एक बहुत विश्वासक हूँ इस चीज में कि जो हमारे पौराणिक तत्वों में जो चीजें थी, जो हमारे रिचुअल्स थे, हमारे जो एक करते थे, जैसे हम वहां पे प्रकृति को अधिकतर जो है मानते थे। इनफैक्ट रिसेंटली हम रांची गए तो वहां पे एक हमें आदिवासी लड़की मिली और वो कह रही थी, हमारा किसी ने मजाक उड़ाया कि भाई आप क्या पेड़ पौधों की पूजा करते हैं एक्सेट्रा, परंतु वो बोली, मतलब उसके अंदर इतनी दृढ़ता एंड स्ट्रांगनेस थी। शी सेज दिस इज आवर रिचुअल, ये हमारी परंपरा है, हम पूछते हैं पेड़ों को, हम पूछते हैं धरती को, हम पूछते हैं जल को, हम करते हैं। आपको अच्छा लगे तो रहिए हमारे झारखंड में, नहीं अच्छा लगे तो आप चले जाइए। So that was something really very nice, you know. दूसरी बात, आज हम सब ये एक बोलते हैं ना प्लेज ले ले, एक अपने आप से एक खुद से एक वादा करें कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो एक थैला जरूर अपने बैग में रखिए। मेरी ये आदत है,
But I want each and every one of us to take this place to make it a point कि जब भी हम घर से बाहर निकले, बजाय कि वेट करें कि भाई प्लास्टिक का थैला देगा सब्जी वाला, नो, कैरी योर ओन थैला. और दूसरी बात जो सर ने, कर्नल साहब ने भी कहा है, let's start remembering the 3 R's, that is refuse, reuse, recycle. And होटल में जाएं, बिस्लेरी की जगह आप अपना वाटर बॉटल निकालिए या फिर नॉर्मल पानी लीजिए. Thank you so much. Thank you so much, all the guests who are here. You have actually enlightened us with the facts and figures and the work which is being done at different levels in our country. And ये हकीकत है, हम सब मिलके, we do not need anybody else. Why does our youth want to go abroad or go out? We can make this our own country the best, the beautiful. It is the best and more beautiful. So let's work upon this, and appreciating our appreciation to all the people who are attending, all the viewers who are attending, and making this event a grand success. Expecting your presence in the near future. With this, I thank each one of you. But let me tell you, well, पर्दा अभी गिरा नहीं है, session अभी खत्म हुआ नहीं है. We are going and we're going to begin with the next session, which is again a very, very interesting session. It is women and democracy. So please be online, be with us until we start the next session. Thank you so much. Have a nice day. I'm sorry to interrupt you. I think Colonel साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. Okay. Colonel साहब, we have to start another session at 11:15. So I think we can wrap up in two minutes. Colonel saab, are you there? You hear me? Hello. Yes. Hello. We have to wrap up in 2 minutes as another. Yeah, session. I understood. Can you hear me? Yes, Yes, we sir. can. मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सेव सॉइल करके एक कैंपेन चला रहे हैं ये लोग, तो वो जमीन पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है उन लोगों से. तो वी कैन, माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज, वी मस्ट catch up with others. I'm forgetting the name of this साधु जी जो पूरे दुनिया भर घूम रहे हैं, तो उनके साथ अगर अपन टाइप कर, हाँ, सहजानंद जी. नहीं, ये मोटरसाइकिल पे जो, ये क्या नाम है? अच्छा, सदगुरु. हाँ, तो देखिए उनको ये कॉन्सेप्ट अगर हम सब मिलके, ये अपना सभी का मिलके कॉन्सेप्ट उनको अगर हम सेल करें, तो अगले 2 साल में पूरा देश के 5000 डैम साफ हो सकते हैं. हमारे पास समय बहुत कम है. मार्च से लेके जून तक जब पानी आगे खिसकता है वॉल के तरफ, उस समय पूरा तालाब नंगा हो जाता है, हर तालाब नंगा हो जाते हैं. और इट शुड बी, हम लोगों ने, मेरी जो किताब है उसमें हमने कहा है कि प्लग द लो हैंगिंग फ्रूट. हमने अगर पूरे डैम्स इस देश के साफ किए जाएंगे तो ये देश सुजलाम सुफलाम हो सकता है. थैंक यू कामिनी जी. Thank you, sir. अगर Thank you. We'll किसी definitely का connect, कोई sir, and get सवाल in touch. हो, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप उसको ले सकते हैं. If there is any question from any participant from any side, so you definitely give the time to the people who are Yes, asking yes. any type of the question. Yes, sir. Yes, sir. So, from the audience, anybody who would like to ask any questions, so please unmute yourself and ask your question. Anybody from the audience who would like to ask any question? लिपिका जी करना चाहती हैं. जी, लिपिका जी. Exactly, this is I want to know more about what Swamiji and the defense personnel, I'm sorry, I'm bad with names, but I'm loving the work they are doing. Punjab, as we all know, is a dying civilization, a great initiative by you, Ekta ji. तो एक तो बहुत ज्यादा जरूरी मुझे ये फील होता है कि सनातन धर्म का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे को दे रहा है, और धर्म के नाम पे हमको जो भी कराया जा रहा है, वी डू नॉट साइंटिफिकली अंडरस्टैंड इट. सो इज इट पॉसिबल दैट वी कैरी दोस मैसेजेस? बिकॉज सनातन धर्म की अगर मैं इंडिविजुअली अपनी भी बात करूं, 5 साल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जुड़ने के बावजूद भी मुझे सनातन धर्म में जो हमारे लिए एज ह्यूमैनिटी एक मैसेज इस धर्म के थ्रू दिया गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो इफ वी कैन टेक धर्म इन द राइट मैनर टू पीपल, whether it is mentioned in Hinduism or it is mentioned in other religions also. So वो एक रिक्वेस्ट मैं इनसे करना चाहूंगी, और कहाँ इनके काम को मैं और डिटेल में पढ़ सकती हूँ या कुछ और इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास
share करना चाहेंगे, because as it has been said that it is all about illiteracy, it is not about human intent. हमें literate ही सही तरीके से नहीं किया गया है. देखिए लिपिका जी एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सनातन धर्म एंड द linkage with the scientific things. It will much better. You don't visit any ashram. You don't visit any place. It will much better if you learn and you follow the things. If you will feel what is, because you are a literate person, you know about you are well educated also. So it will much better. You go yourself, you try to understand what has mentioned in a practical manner in the Sanatan Dharma, and how the Sanatan Dharma is directly linked with the human life, the life of philosophy, the philosophy of life. So it will much better. You don't visit any place. There is no classroom. There is no place. There is no ashram. Then you can get about the Sanatan Dharma in a practical manner. You can understand yourself and what you will feel yourself after your study, after your conversation within yourself. Then you can much better understand that the Sanatan Dharma is not related to the Hindu religion. The Sanatan